Hello, good morning student. This is the third video lecture of Unit 2 Masonry Construction and subject name is Building Construction Technology in semester 3. Okay. So today we will discuss about brick masonry and different types of bonds are available in the masonry construction. Okay. So first of all we discuss about brick masonry. Bond is the arrangement of bricks in each course so as to ensure the greatest possible interlocking and to avoid the continuity of vertical joints in two successive courses both on face. Okay, so here this is the one bricks figure and bricks length is 215 mm here and 65 mm is height and 102.5 mm is a width. Okay, here 102.5 mm width है और ये 215 mm है वो उसकी लेंथ है और उसकी जो हाइट है वो है 65 mm. ओके, so here next is the types of bricks. So here solid bricks, poured bricks. Okay, so bricks used in masonry can be of two types. First one is traditional bricks and second one is a modular brick. So here two types of general bricks are available in masonry construction. First one is a traditional bricks and second one is a modular bricks. So here in solid bricks different types of bricks are available in the types of bricks. Okay, first one is a standard bricks and this is a standard bricks and dimension is length is 3 1/2 inch multiplied to 1/6 inch and multiplied 8 inch. Okay, so this is the figure of standard bricks. Another this one is a standard modular bricks. Third one is this is a oversized and dimensions are given here, and fourth one is oversized modular, fifth one is standard modular, and sixth one is handmade oversized bricks. Okay, so right now this is the second types of bricks. उसमें this is the poured bricks and in poured bricks different types of bricks are available. Generally 10 types of poured bricks are available in types of bricks and one by one here given a figure and detailed dimensions are described here. So this is the king brick. Poured bricks में king types है. Second one is king narrow bed, third one is standard, fourth one is standard modular, fifth one is series 70, another sixth one is series 70 modular, seventh one is econo. Okay, and after that utility, after that Norman, and last one is a 8 square bricks. So ये फिगर देख के आपको मालूम हो गया होगा कि सॉलिड ब्रिक्स है उसमें उसके साइज के आधार से उसका नाम दिया गया और डिफरेंट साइज में वो जो टाइप्स ऑफ ब्रिक्स में सॉलिड ब्रिक्स है वो अवेलेबल है. आफ्टर दैट ये है कोड ब्रिक्स. सो कोड ब्रिक्स है वो 10 टाइप्स में कोड ब्रिक्स आर अवेलेबल होते हैं. ओके, सो नाउ टाइप्स ऑफ ब्रिक जॉइंट्स. सो टाइप्स ऑफ ब्रिक जॉइंट्स में डिफरेंट 7 टाइप्स ऑफ ब्रिक जॉइंट्स आर अवेलेबल. ओके, सो फर्स्ट वन इज वेदर जॉइंट. जो वेदर जॉइंट है वो इस तरीके से, ये पहला वाला है वो है वेदर जॉइंट. ओके, सो वेदर जॉइंट है वो कुछ इस तरीके से होता है. ओके, यहाँ पे जो जॉइंट लगाया गया है और इस तरीके से वहाँ पर कटिंग लगाया होगा तो उसको हम वेदर जॉइंट बोलेंगे. अनदर नेक्स्ट वन इज कॉनकेव जॉइंट. सो कॉनकेव जॉइंट में क्या है कि उसका भागी जो कॉनकेव टाइप का होता है तो इसलिए उसको कॉनकेव जॉइंट बोलते हैं. थर्ड वन इज अ वी जॉइंट. तो वी जॉइंट में इस टाइप्स का जॉइंट्स होता है तो उसको वी जॉइंट बोलते हैं. आफ्टर दैट प्लस जॉइंट. तो प्लस जॉइंट में ये जॉइंट यहाँ पे, ये जॉइंट यहाँ पे, तो ये इस तरीके से ये जॉइंट जो बनता है तो उसको हम प्लस जॉइंट बोलते हैं. उसके बाद है रेक जॉइंट. रेक जॉइंट में क्या कि ये यहाँ पे और ये यहाँ पे और ये इनर साइड में जो जॉइंट लगाया गया उसको रेक जॉइंट बोलते हैं. आफ्टर दैट स्ट्रिप जॉइंट. स्ट्रिप जॉइंट में कुछ इस तरीके से है और लास्ट वन है वो स्ट्रप जॉइंट है. सो कुल मिला के टाइप्स ऑफ ब्रिक जॉइंट्स की बात करें तो उसमें 7 टाइप्स ऑफ ब्रिक जॉइंट्स आर अवेलेबल है. फर्स्ट वन इज अ वेदर जॉइंट, सेकंड वन इज कॉनकेव, third one is a V joints, fourth one is plus joints, fifth one is rake, sixth one is strip joints, and seventh one is a struck joint. Okay, so here work size is equal to coordinating size minus nominal 10 mm joint. तो यहाँ पे जनरली 10 mm का joints है वो पॉसिबल होता है. तो इस तरीके से सपोज कि ये 215 mm का यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लेयर है उसके बाद ये जो यहाँ पे स्पेस दिया गया है वो है 10 mm का जॉइंट है. उसके बाद 102.5 mm का
हॉरिजॉन्टल लेयर है, और उसके बाद क्या आता है, तो उसके बाद ये जो डायमेंशन है वो 10 mm। तो इस सेंटर लाइन से लेके इस सेंटर लाइन हम लेंगे तो 215 प्लस 5 प्लस 5, सो 225 mm जो हमारा कोऑर्डिनेटिंग साइज आएगा यूज्ड फॉर डिजाइन एंड सेटिंग। और यहाँ पे 102.5 प्लस 5 एंड प्लस 5, सो 102.5 प्लस 10 इज इक्वल टू 112.5 mm हमारा आएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे 213 mm प्लस 101 mm, सो 101 प्लस ईयर एक्चुअल साइज एज मेजर्ड, जो यहाँ पे एक्चुअल साइज है वो लगाया गया है। तो 2 mm यहाँ से जॉइंट लेते हैं और 2 mm यहाँ से जॉइंट लेते हैं, तो 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो 217 mm आएगा। उसके बाद ये 101 mm, तो 1.5 mm यहाँ से और 1.5 mm यहाँ से, तो इस तरीके से 104 mm यहाँ से टोटल आ जाएगा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज अ टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ओके, सो इन हियर types of bonds, generally different types of bonds are available in brick construction. First one is the stretching bond, second one is heading bond, third one is the English bond, fourth one is Flemish bond. In Flemish bond, two types of subdivided bond. First one is a double Flemish bond and another one is single Flemish bond. उसके बाद है garden wall bond. garden wall bond में है English garden वाला English garden wall bond and Flemish garden wall bond। और सिक्स्थ वन है रेकिंग बॉन्ड, उसमें हेरिंग बॉन्ड है और डायगोनल बॉन्ड है। और आफ्टर दैट सेवंथ वन है वो है डच बॉन्ड है। तो वन बाय वन हम ये 7 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स है वो डिटेल में हम डिस्क्राइब करेंगे और डिटेल में वो हम देखेंगे। ओके, सो नाउ दिस इज द फर्स्ट वन इज द स्ट्रेचिंग बॉन्ड। तो स्ट्रेचिंग बॉन्ड है तो यहाँ पे ये फर्स्ट लेयर है। ओके, और यहाँ पे जो हाफ ब्रिक बेट है वो यहाँ पे लगाया गया है और इस तरीके से उसका जो ये पहला लेयर है वो इस तरीके से आता है। उसके बाद ये जो दूसरा यहाँ पे आता है वो सेकंड लेयर कुछ इस तरीके से होता है। और सामने से अगर एलिवेशन में हम देखें तो इस टाइप्स का बॉन्ड से वो हमारा हमको वो मिलेगा और इस तरीके से वो दिखेगा। द बॉन्ड इन विच ऑल द ब्रिक्स आर लेड ए स्ट्रेचर्स इन एवरी कोर्स इज कॉल्ड स्ट्रेचिंग बॉन्ड। जो बॉन्ड है वो ओल्ड ब्रिक्स का जो बॉन्ड है वो हम लेड स्ट्रेचर में लेड करते हैं, तो एवरी कोर्स को हम बोलते हैं स्ट्रेचिंग बॉन्ड। ओके, सो नाउ सेकंड वन इज अ हेडिंग बॉन्ड। द बॉन्ड इन विच ऑल द ब्रिक्स आर लेड एज हेडर्स इन एवरी कोर्स ऑफ ए वॉल इज कॉल्ड हेडिंग बॉन्ड। तो यहाँ पे जो हेडिंग बॉन्ड जो लगाया गया होगा तो इस तरीके से उसको हम हेडिंग बॉन्ड भी बोल सकते हैं। दिस बॉन्ड इज कॉमनली यूज्ड फॉर constructing staining of walls, footings of walls and columns, corbels, cornices etc. तो जो यहाँ पे पहला लेयर होगा तो पहला लेयर कुछ इस तरीके से होगा, सामने से इस तरीके से ये प्लान में दिखेगा। ओके, और उसका यहाँ पे जो भाग आएगा वो 3/4 ब्रिक बेड का यहाँ पे जो भाग आ जाएगा। और उसी तरीके से जो सेकंड लेयर उसमें होगा तो वो सेकंड लेयर कुछ इस तरीके से 3/4 ब्रिक बेड में वो आ जाएगा। और सेकंड लेयर यहाँ पे कुछ इस तरीके का है, फर्स्ट लेयर इस तरीके का है और सेकंड लेयर है वो इस तरीके का है। सो द हेडिंग बॉन्ड में द बॉन्ड इन विच ऑल द ब्रिक्स आर लेड एज हेडर्स इन एवरी कोर्स ऑफ ए वॉल इज कॉल्ड हेडिंग बॉन्ड। नाउ दिस बॉन्ड इज कॉमनली used for constructing staining of walls, footings of walls and columns, corbels, cornices etc. तो हेडिंग बॉन्ड में कुछ इस तरीके से आता है। नाउ थर्ड वन इज अ इंग्लिश बॉन्ड। तो इंग्लिश बॉन्ड में क्या है कि इंग्लिश बॉन्ड में यहाँ पे इंग्लिश बॉन्ड जो हमारा आता है तो इंग्लिश बॉन्ड में क्या आएगा कि इंग्लिश बॉन्ड में कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्वीन क्लोजर लगाया गया होगा तो इसको हम बोलेंगे क्वीन क्लोजर। ओके, तो ये हमारा स्ट्रेचिंग कोर्स है, उसके बाद ये हमारा हेडिंग कोर्स है। स्ट्रेचिंग कोर्स इस तरीके से कुछ होगा, उसके बाद ये जो आएगा वो हेडिंग कोर्स आएगा। ओके, इसको बोलेंगे हम इंग्लिश बॉन्ड। यहाँ पे उसी तरीके से ये क्वीन हेडर है और यहाँ पे इसी तरीके से ये क्वीन क्लोजर दिया गया होगा। तो अगर ये सामने से इस तरीके से दिख रहा है आइसोमेट्रिक व्यू में तो प्लान में कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। ये जो भाग है वो क्वीन क्लोजर का भाग होगा। ओके, जो यहाँ पे दिया गया है वो क्वीन क्लोजर का भाग है। ओके, ये क्वीन हेडर है और ये हेडिंग कोर्स है और ये स्ट्रेचिंग कोर्स है, ये क्वीन क्लोजर। ओके, तो इस तरीके से इंग्लिश बॉन्ड में हमारा कुछ इस तरीके से दिखेंगे और ये सामने से एलिवेशन में कुछ इस तरीके से इंग्लिश बॉन्ड है वो दिखाई दे रहा है। ओके, सो इन इंग्लिश बॉन्ड दिस बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स laid in alternative courses. It is strongest of all the bonds. It provides rough appearance especially for one brick thick walls.
जो ये बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, सभी बॉन्ड में से इंग्लिश बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, वो गिना जाता है। और दिस बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स लेड इन अल्टरनेटिव कोर्सेज। तो जो यहाँ पे हेडर और स्ट्रेचर वो है, तो क्या है कि भाई जो स्ट्रेचर एंड हेडर है वो अल्टरनेटिव कोर्सेज में इंग्लिश बॉन्ड में प्रोवाइड किया जाता है। इट प्रोवाइड्स रफ अपीयरेंस स्पेशली फॉर वन ब्रिक थिक वॉल्स। ये जो इंग्लिश बॉन्ड हम प्रोवाइड करते हैं वो रफ अपीयरेंस में स्पेशली होता है वन ब्रिक थिक वॉल्स में। देयर आर नो नोटिसेबल कंटिन्यूअस वर्टिकल जॉइंट्स in the structure built in this bond. So here there are no noticeable continuous vertical joints in the structure built in this bond. Much attention is not required in providing this bond. So here in English bond attention है वो हमको provide required नहीं है this bond को provide करने के लिए। Progress of work is more. तो यहाँ पे जो English bond का progress of work है वो भी ज़्यादा है। It is costly because the use of brick beds is not allowed. Here English bond is a very costly because क्या है कि उसमें जो brick beds है यानी कि bricks के जो टुकड़े होते हैं उसको हम अलाउ नहीं करते, या यानी कि उसका हम यूज English bond है उसमें नहीं कर सकते, तो इसलिए ये कॉस्टली भी ज़्यादा है। ओके सो इन नेक्स्ट वन इज अ फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड में क्या है कि द बॉन्ड इन विच हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स आर लेड अल्टरनेटली इन द सेम कोर्स इज कॉल्ड फ्लेमिश बॉन्ड। टू टाइप्स ऑफ फ्लेमिश बॉन्ड्स आर अवेलेबल। ओके, फर्स्ट वन इज डबल फ्लेमिश बॉन्ड एंड सेकंड वन इज अ सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। ओके, सो दिस इज द फिगर ऑफ फ्लेमिश बॉन्ड। सो फ्लेमिश बॉन्ड में क्या है कि फ्लेमिश टाइप्स ऑफ बॉन्ड उसका जो कोर्स है वो कंसिस्ट होता है अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर में। तो इस तरीके से जो ये है ये हेडर दिया गया होता है और ये स्ट्रेचर दिया गया होता है। उसी तरीके से ये हेडर और स्ट्रेचर हेडर, ओके, हेडर स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर। तो इस तरीके से अल्टरनेटली वो फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है कि एक हेडर होता है और एक स्ट्रेचर होता है। ओके, सो द बॉन्ड इन विच हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स are laid alternately in the same course is called Flemish bond. Two types of Flemish bond. First one is double Flemish bond and second one is a single Flemish bond. Okay, so this is the first one is double Flemish bond. The bond in which headers and stretchers are laid alternately in each course both in the face and back of the wall is called double Flemish bond. तो यहाँ पे ए बी दिया गया है, तो इस तरीके से कुछ ये फ्लेमिश बॉन्ड होता है। ओके, और दूसरा वाला है सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। तो सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड में क्या है, द बॉन्ड प्रोवाइडेड इन ए वॉल विथ फ्लेमिश बॉन्ड इन फेसिंग एंड इंग्लिश बॉन्ड इन बेकिंग इज कॉल्ड सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड और क्रॉस बॉन्ड। दिस बॉन्ड combines the advantages of both English and Flemish bonds and simultaneously eliminates their disadvantages. तो सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड है उसमें क्या होता है कि द बॉन्ड प्रोवाइडेड, जो वॉल प्रोवाइडेड बॉन्ड प्रोवाइड करते हैं वो फ्लेमिश बॉन्ड में फेसिंग में एंड इंग्लिश बॉन्ड बेकिंग में, तो उसमें उसको सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड कहते हैं और उसको क्रॉस बॉन्ड भी हम बोल सकते हैं। और दिस बॉन्ड combines the advantages of both English and Flemish bonds and simultaneously eliminates their disadvantages. तो सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड में जो इंग्लिश एंड फ्लेमिश बॉन्ड का एडवांटेजेस है उसको भी और उसका जो डिसएडवांटेजेस है वो भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा डबल फ्लेमिश बॉन्ड है, तो डबल फ्लेमिश बॉन्ड में क्या है कि जो द बॉन्ड इन विच हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स आर लेड अल्टरनेटली, यानी कि जो ये एक लेयर हमारा दिया गया है वो क्या है कि भाई एक लेयर में उसमें ये दो है वो हेडर्स यहाँ पे दिए गए हैं और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद ये स्ट्रेचर आ जाए अल्टरनेटिवली इन ईच कोर्स बोथ इन द फेस एंड बैक ऑफ द वॉल। जो फेस ऑफ वॉल है वहाँ पे दिया जाता है एंड बैक ऑफ द वॉल है वहाँ पे भी फ्लेमिश बॉन्ड दिया। तो इस तरीके से ये दो लेयर आते हैं तो उसको हम डबल फ्लेमिश बॉन्ड बोलते हैं। और ये सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड है उसमें क्या है कि उसमें जो बॉन्ड प्रोवाइड करते हैं फ्लेमिश बॉन्ड वो फेसिंग एंड इंग्लिश बॉन्ड है वो
फेसिंग जो वहाँ पे फेसिंग होता है उसमें हम फ्लेमिश बॉन्ड प्रोवाइड करते हैं, और उसका जो बेकिंग पार्ट होता है उसमें हम इंग्लिश बॉन्ड प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से उसको हम सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड और क्रॉस बॉन्ड भी बोल सकते हैं। एंड दिस बॉन्ड combines the advantages of both English and Flemish bonds and simultaneously eliminates their disadvantages. Okay, so now difference between English bonds and Flemish bonds. So in English bonds and Flemish bond, the first one is in English bond, this bond consists of headers and stretchers laid in alternative course. So the English bond में क्या है कि भाई header and stretcher है वो alternate course में हम provide करते हैं। तो फ्लेमिश बॉन्ड में फर्स्ट पॉइंट है, दिस बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स लेड अल्टरनेटिवली इन ईच कोर्स। तो ईच कोर्स में हम अल्टरनेटिवली हेडर्स एंड स्ट्रेचर से वो प्रोवाइड करते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट इज इन इंग्लिश बॉन्ड्स, सेकंड पॉइंट इन इंग्लिश बॉन्ड इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द बॉन्ड्स। जो इंग्लिश बॉन्ड है वो सब बॉन्ड्स में स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड्स है। और फ्लेमिश बॉन्ड क्या है, इट इज लेस स्ट्रॉन्ग फॉर वॉल्स हैविंग थिकनेस मोर देन 30.1/2 इंचेस। सो द फ्लेमिश बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग उतना नहीं है फॉर वॉल्स हैविंग थिकनेस, उसका जो थिकनेस है वो मोर देन 13.1/2 इंचेस के हिसाब से होता है। इसलिए इन इंग्लिश बॉन्ड इट प्रोवाइड्स रफ अपीयरेंस स्पेशली फॉर वन ब्रिक थिक वॉल्स। जो उसका प्रोवाइड है उसका रफ अपीयरेंस है, स्पेशली जो उसका वन ब्रिक थिक वॉल्स होता है उसमें। और फ्लेमिश बॉन्ड में इट प्रोवाइड्स गुड अपीयरेंस फॉर ऑल थिकनेस ऑफ वॉल्स। तो जो ऑल थिकनेस ऑफ वॉल्स में फ्लेमिश बॉन्ड है वो गुड अपीयरेंस है वो देता है। देयर आर नो इन इंग्लिश बॉन्ड देयर आर नो नोटिसेबल कंटिन्यूअस वर्टिकल जॉइंट्स इन द स्ट्रक्चर built in this bond. In Flemish bond there are partly continuous vertical joints in the structure built in this bond. So in Flemish bond there are partly continuous vertical joints in the structure to build in this bond. Okay, so in English bond fifth point is much attention is not required in providing this bond. तो इंग्लिश बॉन्ड में क्या है कि वो मच अटेंशन है वो रिक्वायर्ड नहीं है दिस बॉन्ड को प्रोवाइड करने के लिए। और फ्लेमिश बॉन्ड में स्पेशल अटेंशन इज रिक्वायर्ड इन प्रोवाइडिंग दिस बॉन्ड। तो दिस बॉन्ड को प्रोवाइड करने के लिए स्पेशल अटेंशन है वो रिक्वायर्ड है। ओके, सो नेक्स्ट इन इंग्लिश बॉन्ड सिक्स्थ पॉइंट इज प्रोग्रेस ऑफ वर्क इज मोर। तो उसमें क्या है कि जो उसका प्रोग्रेस ऑफ वर्क है इंग्लिश बॉन्ड का वो ज्यादा है, और फ्लेमिश बॉन्ड में क्या है कि प्रोग्रेस ऑफ वर्क है वो लेस है। Next point, in English bond, it is costly because the use of brick beds is not allowed. तो क्या है कि इसमें जो इंग्लिश बॉन्ड है वो कॉस्टली है बिकॉज उसमें जो यूज ऑफ ब्रिक बेड्स है वो अलाउ नहीं है। जबकि फ्लेमिश बॉन्ड में क्या है, इट इज इकोनॉमिकल बिकॉज brick beds are allowed for forming this bond. Okay, so one by one हम फिर से इसका डिफरेंस वो देख लेते हैं in English bond and Flemish bond. In English bonds this bond consists of headers and stretchers laid in alternative course. तो इंग्लिश बॉन्ड में उसका जो हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स है वो अल्टरनेट कोर्स में प्रोवाइड किया जाता है। फ्लेमिश बॉन्ड में क्या आता है कि दिस बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स लेड अल्टरनेटिवली इन ईच कोर्स। In English bond it is strongest of all the bonds. Flemish bond it is less strong for walls having thickness more than 13.1/2 inches. In English bond third point it provides rough appearance especially for one brick thick walls, when a Flemish bond it provides good appearance for all thickness of walls. Fourth one, in English bond there are no noticeable continuous vertical joints in the structure built in this bond, when in Flemish bond there are partly continuous vertical joints in the structure built in this bond. In fifth point, in English bond much attention is not required in providing this bond, when Flemish bond special attention is required in providing this bond. In English bond progress of work is more and Flemish bond progress of work is less. In English bond it is costly because the use of brick beds is not allowed, when in Flemish bond it is economical because brick beds are allowed for forming this bond. Okay, so thank you, and this video lecture is here over.